नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. All salutations and greetings upon Prophet Muhammad, peace be upon him, and his noble family members and his companions. And after that, my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have topic about Ramadan, about fasting, roza, little bit inshallah in English and then in inshallah Urdu. Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, Surah Al-Baqarah, verse number 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج اسپیشلی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ روزے کے فضائل کے حوالے سے ہے، اور کچھ کوسچنز ہیں جس کو میں ایڈریس کروں گا کہ کیا ڈیورنگ فاسٹنگ ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں، تو کیسے انجیکشن لگوا سکتے ہیں، تو یہ بھی کوسچن ہے، اس کا بھی میں آنسر دوں گا۔ اور آپ لوگ اگر کوسچن پوچھنا چاہیں تو آپ نیچے کامنٹس میں اپنا کوسچن لکھ بھی سکتے ہیں اور اس کا آنسر آپ کو دیا جائے گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ دا رمضان فاسٹ، آج روزے کے فضائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ اکارڈنگ ٹو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، Allah's Messenger ﷺ said, if someone keeps the Ramadan fast imbued with faith and the expectation of spiritual reward, he will be granted forgiveness for his previous sinful conduct. And this hadith from Bukhari and Muslim. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھیں لیکن ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ثواب پانے کی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ سے دعا کے ساتھ، یعنی کوئی اور اس میں نیت نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور اس میں کوئی اور نیت نہ ہو، صرف ڈائٹنگ نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جائے اور ایمان کے ساتھ رکھا جائے، وہ روزہ اگر قبول ہو جائے تو کریم آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان آتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفی روایت فتح ابواب الجنہ، دوسری روایت کے مطابق جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کے حملے جیسے پہلے 11 مہینوں میں ہوتے ہیں، اس 12ویں مہینے میں وہ حملے نہیں ہوتے، شیاطین کی طاقت کو ختم کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ Allah's Messenger علیہ السلام said, when the month of Ramadan comes, the gates of heaven are opened. In one report, the gates of the garden of paradise are opened. The gates of hell are locked and the devils are shackled. And this hadith from
बुखारी एंड मुस्लिम टू। तो जन्नत के दरवाजे इसलिए कहा जाता है कि जो रमज़ान में फौत होता है वो जन्नती है। हिसाब किताब होता है लेकिन बहुत नरमी के साथ उसका हिसाब होता है। तो दोज़ख के दरवाजे बंद, यानी जो भी इसमें मुसलमान ईमान के साथ ज़ाहिर गैर मुस्लिम मरेगा तो वो तो नहीं जन्नत में जाएगा। तो ये तो एक अंडरस्टूड बात है, यह है मुसलमानों के लिए, यह है ईमान वालों के लिए बात हो रही है कि वो फौत होते हैं तो वो जन्नती रूह होती है। और जो आसमानों के दरवाजे खुल जाना, इससे मुराद ये है कि रहमत के दरवाजे, क्योंकि रमज़ान सारा मुबारक महीना है, ये रहमत वाला है, मगफिरत वाला है, दोज़ख से आज़ादी वाला है। इसमें एक माहौल और सीज़न इबादत का बन जाता है, एक माहौल बन जाता है इबादत का, कुरान के साथ ताल्लुक़ बन जाता है, ताल्लुक़ कायम हो जाता है और रोज़े के साथ ताल्लुक़ कायम हो जाता है। तो इसलिए, और अगली हदीस ये भी बुखारी और मुस्लिम में है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया। तो इसका मतलब ये हदीस कुदसी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, लेकिन ये हदीस पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। क़ाल अल्लाहु कुल्लु अमल इब्नि आदम लहू इल्ला सियाम, सारे अमल जितने भी दीन के अंदर अमल हैं वो सारे के सारे हर इंसान के लिए अपने लिए होते हैं, लेकिन जो रोज़ा है उसका कुछ मामला और है। ये एक रोज़ा ऐसी इबादत है जिसका मामला कुछ और है। फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, ये सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा होता हूँ। व सियाम जुन्ना, और जो रोज़ा है वह एक ढाल है, एक शील्ड है। व इज़ा काना यौम सौमी अहदिकुम फला यरफुस वला यसफ़, तो इसके लवाज़मात हैं कुछ, इसके अहकामात हैं कुछ। अगर रोज़ा रखना है, रोज़ा तुम में से जब कोई रखे तो फुहश कलामी ना करे, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करे, झूठ ना बोले, गीबत ना करे, फजूल बातें ना करे, अल्लाह के ज़िक्र के साथ अपनी ज़ुबान को ताज़ा रखे, अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़ुबान पर जारी रखे। वला यस, और झगड़े ना, दूसरों से झगड़ा करना, गाली गलौज करना, झूठ बोलना, फजूल बातें करना, इन सब से अपने आप को महफूज रखे। ऐसा समझ ले कि मेरे पूरे जिस्म का रोज़ा है, मेरे सारे ज़ुबान का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, मेरी आंखों का भी रोज़ा है, मेरे हाथों का भी रोज़ा है, मेरे पाँव का भी रोज़ा है, मेरी हर चीज़ का रोज़ा है। जब ये चीज़ इस चीज़ को ले लेगा तो फिर उसके लिए आसान हो जाएगा। और फरमाया कि अगर कोई उसको गाली देता है तो उसका भी जवाब ना दे, कह दे कि मैं रोज़े के साथ हूँ। और उसके साथ अगर कोई लड़ाई करे, उसको कोई गालियाँ दे, उसको कोई तंग करे, तो वो कह दे मैं रोज़े के साथ हूँ, ये मेरा ऐसा बिहेवियर नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरा बिहेवियर है, मेरा अखलाक है, ये मेरे रब का फरमान है, मेरे नबी का फरमान है, मेरी शरीयत का फरमान है, मैं ऐसा नहीं कह सकता, मैं ऐसा जवाब नहीं दे सकता, मैं रोज़े के साथ हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया कि मुझे उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो रोज़ेदार की मुंह की जो बू है, स्मेल, मुंह की बू है, वो अल्लाह के यहाँ मिस्क से भी ज़्यादा खुशबूदार है, अल्लाह के यहाँ ज़्यादा पसंदीदा है, अल्लाह उसको बड़ा पसंद फरमाता है। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ होंगी। एक खुशी जब इफ्तारी का करीब आता है टाइम, वो खुशी होती है कि अब इफ्तारी का टाइम करीब आ गया, तो वो बड़ी खुशी होती है, कितने मिनट रह गए, अभी हम इफ्तारी करेंगे और खाएंगे पिएंगे, ये खुशी होती है, ये छोटी खुशी है। और एक बहुत बड़ी खुशी क़यामत वाले दिन दी जाएगी, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपना दीदार अता करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुलेआम फरमाएगा कि तुम अब मेरे लिए रोज़ा तुमने रखा था, अब तुम मेरा दीदार कर सकते हो। तो इसमें जो चंद सवालात हैं वो मैं अर्ज़ कर दूं। एक तो ये कि जो मुंह की स्मेल है, बू है, वो अल्लाह को पसंद है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जनाब ब्रश करना भी छोड़ दें, मिसवाक करना भी छोड़ दें। असल में होता ये है कि जब सारा दिन भूखा रहता है इंसान,
विद फास्टिंग, रोज़ा होता है, तो वो एक स्टमक से एक बू आती है, स्मेल वो स्टमक से होती है, वो जो मुंह की तरफ आती है, वो सबसे बड़ी पसंद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। ये जो मुंह की बू, यानी जो हम खाते हैं तो दांतों के अंदर कुछ डिपॉजिट रह जाते हैं, दांतों के इर्द गिर्द कुछ रह जाता है, तो वो जो होता है उसकी तो बदबू होती है। तो मिसवाक करना, ब्रश करना बिल्कुल रोज़े में जायज़ है और करना भी चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक कि ईमान आधा तो सफाई में है, तो अपने आप की सफाई करना ये ज़रूरी है। ये नहीं है कि जनाब हम मिसवाक करना छोड़ दें, हम कुली करना छोड़ दें, हम ब्रश करना छोड़ दें। ब्रश भी करना चाहिए और मिसवाक भी अगर अवेलेबल हो तो वो भी करना चाहिए। ये शरई लिहाज से ये मना नहीं है, क्योंकि सफाई इसी से अगर हम ना करें तो वो जो डिपॉजिट अंदर रह जाते हैं उसकी वजह से दांत भी खराब होते हैं, सेहत भी खराब होने का खतरा होता है। और फिर एक सवाल आया कि इंजेक्शन क्या लगवा सकते हैं या नहीं। फिर इसमें काफ़ी ये भी वजाहत आई कि जी वो कभी इंजेक्शन होता है गोश्त के अंदर होता है, ओनली इन मीट, और कभी होता है कि हड्डी बोन के अंदर होता है, तो कौन सा हम लगवा सकते हैं, कौन सा हम नहीं लगवा सकते। भाई सिंपल सी बात है, जब एनर्जी जिस्म के अंदर आ रही है तो उसमें एहतियात ज़रूरी है। और जब अल्लाह ने खुद फरमा दिया है सूरतुल बकरा वर्स नंबर 184, फमिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जब अल्लाह ने वाज़े कुरान में फरमा दिया है तो मजीद किसी का कौल उधर से या इधर से लेने की क्या ज़रूरत है। डायरेक्ट अल्लाह ने फरमा दिया है कि जब तुम में से कोई मरीज हो, इफ़ यू आर सिक और यू आर ऑन जर्नी, देन यू मेक अप आफ्टर दैट दोज डेज ऑफ फास्टिंग, कि वो जो रोजे के दिन हैं वो ईद के बाद आप मुकम्मल कर लें। जब अल्लाह ने इतनी आसानी दी है तो हम अपने आप को मुश्किल में क्यों डालना चाहते हैं। अब जी वो कभी बोन में होती है, हड्डी में लगता है, कभी वो गोश्त में लगता है, तो ये जायज़ है, इससे एनर्जी, भाई एनर्जी आती है जिससे, चाहे वो गोश्त में हो चाहे में हड्डी में हो, तो एहतियात ज़रूरी है। अच्छा इंजेक्शन कौन लगवाता है भाई, सिक पर्सन ही लगवाता है ना, मरीज ही लगवाता है ना, खुशी के साथ तो नहीं लगवाते। तो अल्लाह ने जब फरमा दिया है कि जब तुम सिक हो, मरीज हो, जब तुम बीमार हो, तो फिर उस वक्त आप बाद में मेकअप कर लें। तो जिस दिन आपने मेडिसिन, हाँ रात को मेडिसिन खाएं, अगर कोई ज़रूरी है कि दिन को ही इंजेक्शन लगवाना है या मेडिसिन खानी है तो उस दिन का रोज़ा आप ना रखें और ईद के बाद उतनी मुकम्मल कर लें। कितना आसान दीन अल्लाह ने हमें दिया है, ये मुश्किल दीन नहीं है, इसको आसान बनाएं, दूसरों को इंप्रेशन ये दें। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि अपने दीन को आसान बनाएं, और ये आसान दीन है और ये अकॉर्डिंग टू नेचर है। कभी ऐसा नहीं होता कि दीन हमारा कुछ और कहे, हमारी नेचर कुछ और कहे, ये कभी ऐसा नहीं होता। हमेशा दीन हमारा अकॉर्डिंग टू नेचर, हमारी फितरत के मुताबिक है। और गैर मुस्लिम को हमने ये पैगाम देना है कि दीन हमारा आसान है, ये मुश्किल नहीं है। यानी वो उनके ज़हनों में ये, क्योंकि हमारी टॉक होती रहती है मुख्तलिफ लोगों के साथ, दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ, पादरियों के साथ, ईसाइयों के साथ, और जो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ टीचर्स के साथ बात होती रहती है कि ये दीन इतना मुश्किल। भाई दीन आसान है हमारा, अकॉर्डिंग टू दीन, अकॉर्डिंग टू नेचर है, ये मुश्किल नहीं है। तो इसलिए आसान दीन है, तो इस पर अमल करना शुरू करते हैं तो ये और आसान हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।